everyone, and welcome back to my channel, the Literary Lounge again. So there was some delay in uploading these videos related to this cbse content, owing to a very tight schedule. But today here I am again for you, and today I have brought for you an explanation, not the line by line explanation, but an explanation and an analysis of the chapter, the second chapter of your book Snapshots, that is the address. So it is a story, the address. It is the story about a young girl who goes back to the place of her mother's friend. Okay, and the story is set in the backdrop of the World War, right? Mrs. Doling, she goes back to the place of Mrs. Doling to find her old belongings, right? Her belongings of her mother and herself, only to find, that they do not carry the same value. Earlier they had a lot of value, but now in the present they don't, right? And in this different setting, they have lost all attachment and value with, living with these unfamiliar people. All these belongings, they are not important to the author anymore. Now the setting of the story is, World War, okay, World War One, and the persecution of the Jews by Hitler's Nazi forces. You must have heard about Hitler, the Axis powers, right, in the Allied forces. So this is the backdrop of the story. The girl and the narrator and a mother, Mrs. S. She has been throughout the entire story. The mother of the author is referred to as Mrs. S. They are Jews. Both of them are Jews, obviously, who lived in Germany or maybe Austria or Holland, which was, subjugated and colonized by Hitler's Nazi forces. So once the war was over, the narrator, she, felt confident and safe enough to, visit her old place, right? So she decided to pay this place a visit. She found her old house was not there and started living in a small hut, okay, a small apartment. क्योंकि वॉर में उसका घर जो है वो पूरा तबाह हो गया था, तो उसने एक छोटा सा अपार्टमेंट ले ली जहाँ वो रह रही थी. Reminiscing the old times, thinking about, reminiscing means thinking about, सोचना पुराने टाइम के बारे में. She decided finally to visit the address, house number 46 Marconi Street, जो उसकी माँ ने मरने से पहले दिया था, जहाँ मिसेस डोलिंग रहती थी. Now this is the address of her mother's old acquaintance, Mrs. Doling, and the narrator had only seen this woman once, right? And that was before the war. And now the story starts when the war is over. She used to borrow her mother's belongings and possessions, right? Like clothes and utensils and silverware, because Jews were famous for having a lot of silverware. Jews बहुत पैसे वाले लोग होते थे, उनके पास चांदी के आइटम्स बहुत होते थे. इवन खाने के जो बर्तन है वो भी चांदी के ही होते थे, राइट? सो मिसेस डोलिंग took all these things for safe keeping in case their family had to flee, उन्हें भागना पड़ा अगर वॉर के दौरान, right? So their house could be burned, it could be, plundered. तो उन्होंने इसलिए वो सारा सामान मिसेस डोलिंग को दे दिया. So in case the family had to flee their house, right, protecting themselves against the Nazi repression, इसलिए माँ ने सारा सामान दे दिया था, बाद में आके वो ले लेंगी. When the narrator Maga Minko, now the name of the narrator or the author is Maga Minko, she is a Jew. When she reaches the address, right, a broad-backed old lady opens the door, right, incompletely. She opens the door a chink, बहुत जरा सा दरवाजा खोला उसने, as if to hide some secret. वो पहचान तो गई थी, but she refuses to recognize her in front of the author. लेकिन ऑथर के सामने उसने पहचानने से इनकार कर दिया. और दरवाजा इसलिए कम खोला था कि अंदर इतना सारा सामान था जो वो उठा के लाई थी, और ऑथर कहेगी कि मुझे मेरा सामान वापस चाहिए. दैट इज वाई शी इज वेयरिंग हर मदर्स ओल्ड कार्डिगन. कार्डिगन एक स्वेटर होता है जिसमें या बटन्स होते हैं या जिपर होता है, दैट इज कॉल्ड कार्डिगन. तो उसकी माँ का पुराना जो कार्डिगन था वो उसने पहन रखा था. नाउ द गर्ल रिकॉग्नाइजेस द वुमन एंड एक्नॉलेजेस द सेम. तो लड़की तो पहचान जाती है नैरेटर मागामिंग को, बट द वुमन claims to know nothing about her bluntly, right? She gives this white lie, मुंह पे उसके सफेद झूठ बोल देती है. The girl reminded her of Mrs. S, her mother, and their house, right? The woman realized who she was and inquired how did she survive when the rest of, her family died in the war and depression. Now, this woman, Mrs. Doling, when she came to know that everyone has died, including the author's family, she was very contented कि चलो अब कोई आएगा नहीं सामान लेने. So she is asking, अरे तुम्हारी फैमिली में तो सब मर गए, तुम कैसे बच गई? Instead of taking her inside, offering her a cup of coffee, she is more interested in knowing how come she is alive. ऐसे लोग होते हैं, right? This is how people are, right? Okay? And the girl said she had returned to the place after the war
and wanted to see her mother's things. तो लड़की ने कहा कि मैं वॉर के बाद आई हूं, मैं बच गई थी और मुझे अपनी माँ की जो चीजें हैं वो देखनी है. Now the woman rebuffed her advances and said that she did not have time to get into old stuff at that moment and that the girl should return some other time. तो उसने टाल दिया, मना कर दिया ऑथर से कि देखो इस वक्त तो मैं बिजी हूँ, तुम कभी और आना, इस वक्त आई एम काइंड ऑफ हेल्ड अप राइट नाउ, आई एम काइंड ऑफ एंगेज्ड राइट नाउ, मे बी यू कैन ड्रॉप इन सम अदर टाइम, कभी और आ जाना. द वुमेन्स डॉटर आस्क्ड अबाउट द विजिटर फ्रॉम इनसाइड द हाउस बट द वुमेन क्लेम्ड दैट इट वाज नोबडी फेमिलियर. अब जब वो अंदर गई तो उसकी लड़की ने पूछा डोलिंग की कौन था दरवाजे पे. अब उसने अपनी बेटी को तो सच नहीं बताया, वरना बेटी क्या सोचती माँ के बारे में कि मेरी माँ एक चोर है, मेरी माँ धोखे से किसी का सामान उठा के ले आई. दैट इज वाई शी हैज केप्ट इवन हर ओन डॉटर इन द डार्क. अपनी बेटी को भी ये नहीं बताया है. द बिट्रेयल ऑफ अ मदर्स ओल्ड फ्रेंड शॉक्ड एंड हर्ट द नैरेटर. ऑब्वियसली किसी को भी हर्ट करेगा, लेकिन लोग ऐसे ही होते हैं. दिस इज हाउ पीपल चेंज. शी डिसाइडेड टू रिटर्न विद अ हैवी हार्ट एंड डैश्ड होप्स. तो फाइनली डिसाइड करती है, शी डिसाइड्स टू गो बैक टू द स्टेशन टू कैच अ ट्रेन. डिसाइड करती है कि मैं वापस जाती हूँ. दिस इज व्हाट शी डिसाइड्स. शी इज टोटली ब्रोकन एंड हर होप्स आर डैश्ड अगेंस्ट द वॉल. उसकी सारी उम्मीदें जो हैं वो चकनाचूर हो जाती हैं. Now on her way back, the narrator remembers the day she came back to her, mothers at the beginning of the war. तो उसे वो याद करती है पुरानी में. शी इज गोइंग डाउन द मेमोरी लेन के वो कब पास्ट में वो जब घर आती है एक दिन ऐसे ही अपने कॉलेज से. शी मे हैव रिटर्न फ्रॉम हॉस्टल और अ ट्रिप. तो उसमें क्लियरली चैप्टर में नहीं दिया है, बट ऑब्वियसली शी हैड रिटर्न फ्रॉम आइदर अ हॉस्टल और मे बी सम काइंड ऑफ ट्रिप, राइट. किसी ट्रिप पे घूमने गई थी, हॉस्टल से लौटी थी कॉलेज से. शी लुक्ड एट द हाउस एंड द रूम्स and found several pieces of furniture, cook, crockery, silverware etc. were not there. उस पे माँ ने कहा भी था, उसे लगा घर में से कुछ चीज़ें गायब हुई हैं. फर्नीचर कुछ कम लग रहा है, उसे अजीब सा लग रहा था. सिल्वरवेयर और क्रॉकरी भी गायब है. तो माँ को बड़ा उस पर आश्चर्य हुआ. वो द मदर वॉज शॉक्ड. कह रहे मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, तुमने पहली बार में ही देख लिया क्या क्या चीज़ें गायब हुई हैं, राइट. शी बिकेम वरीड, राइट, एंड इंक्वायर्ड अबाउट द मिसिंग स्टफ फ्रॉम अ मदर. तो उसने माँ से पूछा माँ क्या हो रहा है, ये चीजें सब कहाँ गायब हो गई. हर मदर डाउन प्लेड द इशू एंड इंस्टेड अप्रिशिएटेड हर कीन ऑब्जर्वेशन. माँ ने उसे टालने के लिए अपनी बेटी का, अरे भाई तुम्हारा ऑब्जर्वेशन तो बहुत कमाल का है, ताकि बेटी का उस बात से मेन जो इशू है कि सामान कहाँ गया उससे ध्यान हट जाए. शी डाउन प्लेड इट, राइट. शी कमेंडेड हर कीन ऑब्जर्वेशन कि तुम्हारी ऑब्जर्वेशनल पावर्स बहुत अच्छी हैं. वन मॉर्निंग when the girl was striding down the stairs, she saw a woman leaving her house and a mother escorting her out. एक दिन ऐसे ही author Maga Minko, she was coming downstairs and she saw her mother seeing off some woman out of the door. उसने देखा कि उसकी माँ किसी औरत को दरवाजे तक छोड़ने जा रही है, कोई गेस्ट आया हुआ था. This woman was carrying their crockery and furniture and loading them in a carriage. और ये औरत खाली नहीं जा रही थी. क्रॉकरी और फर्नीचर था जो बैग में भरा हुआ था, वो एक घोड़ा गाड़ी थी, कार्ट थी, कैरेज था, उसमें वो लोड करके ले जा रही थी. शी टेल्स हर मदर अबाउट द वुमेन एंड व्हाई शी टुक देयर स्टफ, राइट. हर मदर टोल्ड हर दैट इट वाज मिसेस डोलिंग, एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ हर्स हु हैड रिकनेक्टेड विद हर इन रीसेंट टाइम्स, राइट. तो वो पूछती है माँ से कि कौन है ये औरत और ये हमारा सामान क्यों ले जा रही है. तो माँ बताती है कि एक पुराने मेरे ताल्लुकात जानने वाली, एक्वेंटेंस मीन्स समवन यू आर फेमिलियर विद, जान पहचान वाला. तो उससे दोबारा से मेरी बातचीत शुरू हो गई इधर हाल फिलहाल में. अब डोलिंग ने इसीलिए बातचीत शुरू करी थी, उसे पता था. शी न्यू वॉर आ रहा है, ज्यूज भागेंगे, उनका सामान मैं ले सकती हूँ. मिसेस डोलिंग मिसेस एस वॉज एन ईजी टारगेट, इसलिए उसने मिसेस एस से दोबारा से ताल्लुकात बनाए, उनका सामान लेके जाने लगी. शी वॉज टेकिंग देयर थिंग्स टू कीप देम सेफ इन केस दे हैड टू फ्ली इन एन इमरजेंसी. और उसने ये कहा था कि अगर आपको एकदम से भागना पड़ा इमरजेंसी में तो आपका सामान सेफ रखूंगी. दे वुड कलेक्ट देयर थिंग्स आफ्टर पीस वाज एस्टैब्लिश्ड एंड दे वर सेफ इन देयर प्लेस. और तय यह हुआ था वंस द वॉर इज ओवर दे कैन टेक बैक देयर बिलोंगिंग्स. वॉर के बाद वो अपना सारा सामान वापस ले आएंगे. अब भला कोई क्यों राजी होगा, वॉर और नो वॉर, राइट. व्हाई वुड समवन एग्री टू कीप योर बिलोंगिंग्स, राइट, ट्रकलोड्स ऑफ देम. इतने बड़े बड़े संदूक, फर्नीचर क्यों अपने घर में कोई ठूसेगा, कोई नहीं करता. छोटी सी मदद तो कोई करता नहीं है. Why would someone do something like this, right? So from the very start, it is very clear that Mrs. Doling had nefarious designs. उनके दिमाग में खुराफात चल रही थी, उन्हें ये सामान अपना करना था, इसलिए वो लेके गई थी, right?
The girl did not feel comfortable and found the woman mysterious and sinister. Obviously, Marga Minko को इस औरत पे ट्रस्ट नहीं था and she found her sinister and cunning, mysterious, right? तो उसे ये औरत बहुत तेज तर्रार लगी, धोखेबाज लगी. She was, right? Her mother had asked her to, refrain from suspecting her friend as she was helping them at the risk of her own life. अब माँ को ये बुरा लगा. माँ ने कहा वो अपनी जान जोखिम में डाल के हमारा सामान लेके जा रही है, तुम उस पर शक कर रही हो. दिस इज नॉट राइट. This is what the mother said. She told her about her address at Marconi Street. And once the conversation was over, lastly the mother tells the daughter Marga Minko about this woman's address. उसने डोलिंग का एड्रेस बताया just in case कि वॉर के बाद पता नहीं क्या आउटकम्स हो, माँ बचे ना बचे, बेटी बचे, किसी को नहीं पता. तो वो एड्रेस बता देती है कि अगर if it is possible, right, you must also know the address is 46 Marconi Street, ताकि बाद में सामान लेके आ सको in case I am not alive. Right? It was house number 46. Unfortunately, the family was driven to the concentration camps and none survived to save the narrator. Right? तो क्या हुआ उसके बाद? What happened? Everyone was taken to where? Everyone was taken to the concentration camp. Right? But the author was saved. Rest of all the people, even the mother, they were, killed. They died. Now, the author was quite frustrated. Marga Minko, the narrator, she was quite frustrated, at her last visit, right? The narrator decides to go back again, give it a shot one more time. उसने decide किया कि मैं एक बार और कोशिश करती हूँ, जाके देखती हूँ, right, to the same address and reclaim her mother's belongings. So she was quite determined and, approached the door. She went back there, she approached the door, but this time Doling did not come out and it was a new face which opened the door. It was Mrs. Doling's daughter. तो इस बार डोलिंग घर पे नहीं थी. ये एक तरीके से ऑथर के लिए लकी साबित हुआ, अच्छा ही हुआ, वरना वो फिर से मना कर देती, कोई बहाना कर देती. नाउ द डॉटर, बिकॉज शी डजंट नो, डोलिंग ने अपनी बेटी से छुपाया है सब, तो उसने मागा मिंको को, नरेटर को अंदर आने दिया. राइट? शी आस्क्ड द नरेटर टू कम इनसाइड एंड एस्कॉर्टेड हर टू द ड्राइंग रूम. वो ले गई कहाँ? ड्राइंग रूम में बिठा दिया जाके. द रूम वॉज फिल्ड विद नरेटर्स ओल्ड थिंग्स एंड दैट बिलोंग टू हर मदर. पूरा ड्राइंग रूम जो है वो मागा मिंको, उसकी माँ की जो चीजें थी उससे भरा हुआ था, सजा हुआ था. इवन द बर्न्ट मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, राइट, इसके जो टेबल क्लॉथ था उसमें एक जले का निशान था एक जगह, वो तक वैसे का वैसे था जो का तू. टू द सिल्वर स्पून्स एवरीथिंग रिमाइंडेड हर ऑफ द पास्ट. और ये सारी चीजें देख के क्या हुआ? मागा मिंको को अपना सारा पास्ट याद आ गया, अपने माँ का टाइम, साथ गुजारा हुआ टाइम एंड एवरीथिंग. शी रिमेंबर्ड एवरीथिंग. राइट? नाउ द थिंग्स लुक्ड द सेम बट दे वर इन अ डिफरेंट प्लेस. तो ये सारी चीजें थी तो सेम, ऑब्वियसली थिंग्स थी. इंसान तो है नहीं जो वक्त के साथ चेंज हो जाए, दाढ़ी मूछ निकल आए, बाल लंबे हो जाए. नो, दे वर थिंग्स बट दे लुक डिफरेंट बिकॉज दे वर पुट अप इन अ डिफरेंट प्लेस नाउ. राइट? दे वर लाइफलेस एंड स्ट्रेंज. अर्लियर दे हैड वैल्यू, दे हैड सिंबॉलिकली दे हैड लाइफ, बट नाउ दे डिडंट. अब उनमें कोई जीवन, कोई जिंदगी नहीं था. दे लैक्ड द लाइफ they had before. They lacked the touch of a mother or the smell of her house. तो हमारी सारी चीजें जब हमारे घर की सराउंडिंग में होती है उनकी वैल्यू होती है. They were a reminder of what the narrator had actually lost. और ये सारी चीजें उसे याद दिला रही थी कि उसने क्या खो दिया है. अपना घर, अपनी माँ, राइट, और अपना बचपन जो उसने वहां गुजारा था, या अपनी जितनी भी एज उसने वहां स्पेंड करी थी अपने घर में. दैट इज वॉट शी हैड लॉस्ट. ये सारी चीजें उसे उस पास की, उस दर्द भरे पास की याद दिला रही थी. एंड दैट इट कुड नेवर बी रिकवर्ड. एंड विद दैट रियलाइजेशन केम अ मच बिटर रियलाइजेशन. उससे ज्यादा एक कड़वा रियलाइजेशन आया कि ये सारी चीजें दोबारा वापस नहीं आ सकती. दिस कैन नेवर बी चेंज, दिस कैन नेवर बी रिकवर्ड. द गर्ल ऑब्वियसली डिड नॉट नो दैट हर मदर वॉज अ कॉनाइविंग एंड विकेट वुमेन. तो अब डोलिंग की बेटी को पता नहीं था कि मेरी माँ इतनी तेज है, धोखेबाज औरत है. राइट? द नरेटर asked her if she knew where her mother had got these things. अब नरेटर ने पूछा, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ को ये चीजें कहाँ से मिली? She thought that her mother bought the objects at an auction. उसे क्या लगता था कि मेरी माँ ने एक ऑक्शन हुआ था, ऑक्शन जैसे नीलामी होती है ना, उसमें बिक जाते हैं, वहां से ये चीजें मेरी माँ ने खरीदी हैं. ये उसे लगता है उसकी बेटी को, डोलिंग की. The narrator was soon overwhelmed by the flashing memories and decided to leave the house and the possessions. और ये जितनी चीजें थी, इसकी जो मेमोरीज आई साथ में, they came gushing down like great flood of water. ये बहुत ओवरपावरिंग थी. किसके लिए? नरेटर के लिए. शी कैन नॉट बियर देम. उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था. राइट? एंड सो शी डिसाइडेड टू लीव द हाउस एंड द possessions. Without giving any explanation to her host, she scampered from the house, which became
hauntingly difficult for her to stay in. और बिना कुछ कहे, बिना कोई एक्सक्यूज दिए वो वहां से उठी और दरवाजे से बाहर निकल के चल दी स्टेशन की तरफ. उससे इस घर में रुका नहीं जा रहा था, उसे घुटन हो रही थी. शी वॉज फीलिंग सफोकेटेड राइट इन दिस हाउस. शी मेड अ कमिटमेंट टू नेवर रिटर्न टू द प्लेस, टू दिस प्लेस, to the place where Doling lived, or even to this town, and those forgotten things. In the end, she decided to forget the address and the history that went with it. For her, it was a burden. She was relieved to get off her mind and heart. तो फाइनली उसने डिसाइड किया वहां से, जब वो निकल गई घर से बाहर, कि मैं अब दोबारा इस जगह, इस घर, इस रोड पे कभी नहीं आऊंगी. आई एम नॉट गोइंग टू रिटर्न टू दिस प्लेस अगेन. वो आई मीन दैट ओल्ड हिंदी सॉन्ग, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम. सो दिस इज वॉट शी डिसाइडेड राइट. ऑल द हिस्ट्री विद इट, ऑल द मेमोरीज कनेक्टेड विद इट, शी इज गोइंग टू डंप राइट. शी इज गोइंग टू बरी. उन सबको वो दफन कर देगी, दबा देगी, कभी नहीं सोचेगी. इट वॉज अ बर्डन. उसके लिए ये एक बोझ था, एक बर्डन था राइट. एंड शी वॉज रिलीव्ड टू गेट इट ऑफ हर चेस्ट. उसे ये बोझ अपने सीने से हटाना था. Now this story, it depicts the complex human emotions of intimacy. कि कैसे चीजों से भी इंसान को लगाव हो जाता है, आदमी इंटीमेट हो जाता है. चीजें ही तो थी, माँ तो मर चुकी थी, चाहती तो मागा को नहीं जाती, बट she felt a deep connection with these things which were inanimate, which were not alive. चीजें ही तो थी, still she went. This is how, human emotions are called, this is why human emotions are called very complex, right? Trust, hope, and betrayal is also shown in this chapter. It speaks of the greed and vices that afflict a human being and how it makes them do horrible things, right? Like breaking other people's trust, right? Lying, hopes, and stealing and even cheating. तो कैसे एक इंसान दूसरे इंसान के साथ बुरा कर सकता है? How people can cheat each other, even good friends, even relatives, right? How people can shatter hopes of others for satisfying their own greed. This is what is depicted in this chapter. Now, Mrs. Doling refuses to return what she took from a friend and do her duty as a friend and a responsible human being. तो मतलब उसूल तो यही कहते थे कि मिसेस डोलिंग, जैसे अपना दोस्त कहती थी मिसेस एस को, यानी मागा मिंको की मदर को, उसे वो सारा सामान वापस कर देना चाहिए था जो अपनी दोस्त से वादा किया था, उसे पूरा करना चाहिए था, निभाना चाहिए था. बट शी डिड द एग्जैक्ट ऑपोजिट राइट. शी एक्चुअली use the opportunity to take advantage of her friend's difficult circumstances. उसने आपदा को अवसर बना लिया. किसने? डोलिंग ने राइट. वरना वो चीजें ये कभी खुद नहीं खरीद पाती. उसने कहा अच्छा मौका है, मैं ऐसा करती हूँ राइट. सो दिस रिप्रेजेंट्स द वर्स्ट ऑफ ह्यूमन नेचर. तो इंसान के नेचर में ऑब्वियसली थिंग्स आर नॉट जस्ट सो सिंपल, जस्ट ब्लैक एंड वाइट. हम बाइनरीज के बीच में रहते हैं. वी हैव गुड एंड बैड राइट, डार्क एंड लाइट. सो even here also, if human beings are good, they are bad also. The background of war and persecution of innocent lives has strong connotations and beautifully, foreshadows the story itself. तो जो persecution हुआ था ज्यूस का, तो वो जो बैकड्रॉप है, वॉर है, वर्ल्ड वॉर 1, वो बहुत ही अच्छे तरीके से इंटरट्वाइन किया है नरेटर ने इसमें. और कैसे उसमें जो इनोसेंट लोग थे, हाउ इनोसेंट पीपल, दे वर सेंट टू दीज कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, दे वर किल्ड इन गैस चेम्बर्स. कैसे उनकी पूरे जीवन, उनकी पूरी फैमिली तबाह हो गई. इट इज़ वेरी ब्यूटिफुली पोर्ट्रेड बाय द ऑथर. सो दैट्स इट फॉर टुडे. I hope you understood the chapter. Next, your explanation, line by line explanation will follow suit. Till then, you have a good day. Hasta la vista.